my question is like how to control our emotions. That's the biggest thing because I'm not able to control my emotions अच्छा. and I'm like emotions के साथ बहना जो बोलते हैं वो हाँ हाँ control हाँ. नहीं है. For example, the biggest emotion of mine is like anger. ओके. इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है. हाँ हाँ. So फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि समटाइम्स आई ट्राई टू कंट्रोल माई एंगर एंड सपोज अभी 2 वीक्स तक मैंने कंट्रोल किया है किसी के साथ और या किसी के पीछे और सडनली एकदम बर्स्ट हो जाता है. ओके. एंगर निकल जाता है फिर किसी पे भी हुआ माय घर के मेंबर्स या फ्रेंड्स कोई भी सडनली निकल जाता है. समटाइम्स मैं भी सोचता हूँ कि मतलब मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया ओके. लाइक दैट. ओके. सो एक्चुअली आई वांट टू लर्न दैट how to control my anger, emotions, everything. Not only anger, every emotion. Okay. So you mean to Like say, Mahendra Singh Dhoni. acha, okay, means like you, as you said, ki you really need to control your emotions first of all. Anger Yeah, is one of yeah, those emotions. They say love hai, yeah, caring hai. yeah, Okay. मतलब, yeah. and it's just only you want to control your anger, or you really want to control your emotions. It can be any kind of emotion. All All. emotions. Okay. Yeah, So because some of those emotions are, dragging you away from your pathway, or rather, where yeah, you really yeah, want to reach. Okay. And because of that, you get distracted. yeah. Am I right? Yeah. I'm Okay. not in control. खुद पे ही Okay. कंट्रोल नहीं है मेरा. Okay. So you have that experience कि you are not having that control on your life, right? Because of Yeah, these yeah, emotions. Can I call it as yeah, an unproductive emotions? Because of that, you are losing your yeah. your temper because of that. Okay. Yes, So, I'm wasting my time also. Everything. okay, okay. Because since you shared about your anger, let me tell you, because you are also aware of when we spoke in other workshops of ours where you participated. Okay, in that, emotions means energy in motion, right? Hmm. So in that, any particular emotions in which you are feeling you are losing your control. Okay, so it can be control of how to conduct yourself first, second how to control the overall situation, Yeah, right. Both, parts both, of control, both. The, controlling ourselves and controlling the overall situation. So yeah, यहाँ पर मेन क्या हो रहा है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज खास करके व्हेन यू गेट एंग्री अबाउट एनीथिंग, लाइक anything, if someone says to you and something doesn't happen as per you, so it triggers you. yeah. Because of that, you feel Correct, like agitated. Okay, correct. so at that time, the control which you see, I am losing, is that about yourself or that overall scenario? Okay, the outside control. Sometimes I felt like myself, and sometimes I try to control the overall situation. Because after the situation pass away, I realized that कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था. मैं वहाँ पे शांत रह Okay. सकता था. तो हाँ. मैंने गुस्सा किया और वो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई या मैंने सामने वाले को हर्ट कर लिया. Okay. सब होने के बाद मुझे वो रियलाइज होता है. सो दैट टाइम मतलब मैं सॉरी भी बोल देता हूँ लेकिन वो क्या होता है सामने वाला तब तक हर्ट हो गया रहता है या फिर सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर ही चला गया रहता है. तो मैं वो चाहता हूँ कि वो मुझसे ना So हो this एनी is the सिचुएशन. right, right. And first of all, acknowledge yourself, because you are aware कि there are certain cascading effects. Like if you are going to, blown away by your emotion, in which once you, like, किसी को गालियां दे दी, कुछ कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ बोल दिया, okay, then it is going to hamper your relationships. It can, like, वो काम बिगड़ सकता है आपका, नुकसान हो सकता है, कुछ भी करेक्ट. हो सकता है, and you are aware of that, and you don't want that in your life. Okay, so first of all, now, even like या in our previous calls also, in our coaching calls also, when we have already spoken about this, right, Omkar? Okay, यहाँ पर जो आपको देखना है ना, जहां पर आपका इमोशनली आप ड्रैग हो जाते हो, जहां पर आपका कंट्रोल छूटता है, ओके, वहां पर है ना सर्टन थिंग्स. फर्स्ट कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट वाइज. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज, यू आर एक्सपेक्टिंग सर्टन थिंग्स in a certain way from a certain person first, करेक्ट. right? Second, करेक्ट. if that thing doesn't happen in that expected way, then over, khatam, barabar.
and that happens because you are going with a certain blueprint कि ये ऐसे ही होना चाहिए, कैसा ही होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं हुआ, then मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो यार गड़बड़ है, राइट? और तीसरा जब ये है, हाँ, यहाँ पर क्या है, इवन बिकॉज यू आर अवेयर कि मेरे ये प्रकार के बिहेवियर से, बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू बिहेव इन यू नो what you say, in a reactive manner, some bad can happen. So even you are scared and you are very much, you know, in an apprehensive about कि जो भी रिजल्ट होगा ना यार वो गलत होगा, ओके, वो भी एक डर है, ओके। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने जो मेन बताए, ओके, ये सारी जो चीजें हैं ना, आपका जो एक मेन इमोशन है वो है एंगर, ओके। एंगर जो है उसके पहले मैं अगर बताऊं, अगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ एंगर की बात कर रहे हैं, इवन बिफोर दैट ना, यू रियली नीड टू सी दोज थिंग्स एज इट इज। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से आपका जो पारा है ना बढ़ जाता है। ये प्रकार से नहीं हुआ तो नहीं, वो आप है ना, वो मैच द कॉलम करने के पीछे हो, वो मैच द कॉलम नहीं हो रहा है तो यू आर गेटिंग लाइक ना, रफ हो रहा है पूरा, यू आर गेटिंग एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट। पर आर यू रेडी और रादर विलिंग टू सी दोज थिंग्स एज इट इज? वो इंसान जैसा है वैसा है, जो काम जैसा हुआ है वैसा हुआ है, हाँ, जो 19-20 हुआ है या जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हुआ है, ओके, उसको उतना ही रख के, इंस्टेड ऑफ जस्ट टैगिंग कि यार ये हमेशा ही मेरे साथ होता है, मेरा ही काम क्यों बिगड़ता है, ओके, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, इवन इवन आई एम टेकिंग सो मच ऑफ केयर, आई एम टेकिंग सो मच ऑफ प्रिकॉशंस, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? जब ये सारा जो टैगिंग कर रहे हो ना, उसकी वजह से ये गुस्सा ज्यादा हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो फिर वो व्यक्ति के ऊपर अगर आप टैग कर रहे हो कि ये तो साला गधा ही है, डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बट होता है ना, कभी अपने यार परिवार के साथ में भी हो जाता है, दोस्तों के भी साथ में हो जाता है, कलीग्स के साथ में भी हो जाता है, बट इसमें जो वो सिचुएशन जो हुई है, जो भी, जैसे आपको पता है कि आपका स्ट्रेटेजी है, स्टोरी और स्टेट है, राइट? इफ यू आर इन एन एंग्री स्टेट, दैट मीन्स you have connected a story to it because you have filled your strategy, 3 S's, बराबर? तो यहां पर जब आप ये एंग्री स्टेट में जा रहे हो ना, जस्ट यू रियली नीड टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज दैट स्टोरी आई एम अटैचिंग टू इट। बहुत सारी स्टोरी हो जाती है, वो सामने वाला निकम्मा है, मैं निकम्मा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, जब भी मैं ऐसा करने जाता हूँ कोई ना कोई आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मे इट बी योर पर्सनल रिलेशनशिप्स भी, बराबर है? यहाँ पर अगर आप सोच लो, वो जो इफ यू कैन चेंज योर स्टोरी और इफ यू कैन ऑल्टर दैट स्टोरी, ओके, so that once if you are in that state, you are not going to change that story, right? So first rule क्या है, what needs to be changed? Your state, okay. So state change करने के लिए you have ample tools with you. You can get power pose, you can talk to somebody, you can adhere to your vision board, you can go and refer to your goal, you can refer to whatever the plan you have pointed down for today, okay. Just get distracted and align yourself so that your ultimate focus is on completing those tasks instead of getting dragged away or distracting away because something didn't happen as per your wish or as per your thinking, okay. So once you are in that state, then you can go and alter your stories, okay. There will be like one story and there can be like n number of stories which you can attach to a certain incident happen in your life or your strategy failed, okay. So once you alter that story कि भैया हाँ मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, इस वजह से हुआ, instead of tagging to that, हाँ these are the certain points, उसमें थोड़ा 19-20 रह गया या 15-20 रह गया, okay. If I can manage to fix this up, if I can close this gap, then it's 100% whole and complete. So once you alter that story, just giving a thought, what is that thing which is missing, जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, अच्छा ये, so once you distinguish, हाँ ये वजह से काम नहीं हुआ, okay, okay, so let me think upon this. अगर मैंने ये काम में ये जो मिसिंग थिंग था, ये अगर इंग्रेडिएंट वापस से इसमें मैंने डाल दिया, then my work is done as per my wish और जैसा मुझे चाहिए था।
अगर वो फिर करने के लिए मुझे क्या मेरे स्ट्रक्चर या सिस्टम में या जो लोगों के साथ में कम्युनिकेशन में मेरा गैप है क्या, कि जो मैं समझाना चाह रहा था लोगों को नहीं समझा. What is that the outcome you are seeking? If that is not clear to the person or to the team, then how they are going to align to that outcome? Okay, so once you distinguish ना ये क्या हुआ, वो outcome जो मैं चाह रहा था ना नहीं मिला, so there can be 10 things या 10,000 things. Okay, उसका distinguish होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मालूम है अगर आप एंगर में हो तो वापस उस स्ट्रेटेजी पे जाके काम नहीं कर सकते. इफ यू आर इन दैट लो वाइब्रेशनल स्टेट, यू आर नॉट गोइंग टू गो एंड वर्क ऑन दैट सेम स्ट्रेटेजी और सेम प्लान पे, राइट? और उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो. तो सेम स्टेट को चेंज करना है, चेंज योर स्टोरी. और स्टोरी जब चेंज होगी ना, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू गो अगेन टू दैट स्ट्रेटेजी, रिवाइज इट और ऑल्टर इट और चेंज इट ऑल टुगेदर एंड देन एग्जीक्यूट. Are you getting me? The same 3S's, you are aware of it. Okay, it just ये जो बोलते हैं ना, वो जो एक बबल इफेक्ट जो होता है ना, क्योंकि is instead of responding, our mind is so much primed for reacting, and certainly in these days many people are reacting. I am getting a lot of calls from like TV industry and film industry also, because people are not able to adhere to the structures even which they know, because you also know E plus R is equal to O, where you need to respond in every situation, but people tend to react, and reaction will always take you away from your outcome. That is the thumb rule. Yeah, right. So sometimes if you see now, one point I just really want to complete here, because your emotion is so much signify for you, it's so significant for you, because you really want to have that command in that situation, whatever situation you are dealing. Okay, you really want to be in command. Okay, because if you are not in command, you will really feel very powerless. और powerless में ना फिर वो अच्छा नहीं लगता यार, मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब what's the use of my, मतलब राइट, उसमें रिकॉग्निशन नहीं है, उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, वो काम करने में मजा नहीं है. और वो काम में एक तो एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, और उसमें साला काम भी नहीं हो रहा है, तो आदमी गुस्सा ही होगा. बट यू आर आल्सो अवेयर कि एंगर इज अ चॉइस, राइट? या आई नो, बट गुस्सा होने के बाद वो पता चलता है ना, ये यहाँ पे नहीं एंगर करना था. बट समटाइम आई फील लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम समवन एल्स, या सामने वाले से, या मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने उसके लिए इतना किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिटर्न में कि वो भी उतना ही करे. मे बी ये एक हो सकता है. पर यहाँ पर जो है ना ओंकार, if you are expecting na certain things, okay, don't be so unclear about it. If that person or that team or whatever, whoever, okay, if he doesn't know what is been expected from him or her, how they are going to act upon it. So whatever your expectations है, जो भी है ना आपकी, वो crystal clear communication में जानी बहुत जरूरी है. इधर मालूम है, मैं आपको लोगों को वर्कशॉप में भी बताया था कि मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा है, राइट? आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग एंड इट्स इन माय हेड, और मैं यहाँ पर तबला बजा रहा हूँ टेबल के ऊपर, एंड आई एम आस्किंग यू पीपल टू गेस द सॉन्ग. हो सकता है नहीं. तो मेरे दिमाग में तो गा भी नहीं रहा हूँ, मैं तो उसके ऊपर तबला बजा रहा हूँ. वाह वाह वाह. And I am asking, अरे क्या यार ओमकार, इतना भी नहीं समझ में आता है यार ये गाना, या तो मुझे गाना बराबर गाना भी तो पड़ेगा ना, ताकि आप लोग गैस कर सको. समझ में आ रहा है ये? सो यहाँ पर जो गैप्स हो सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर एंग्री, दैट मीन्स फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है. आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सामने वाले को है ना लैंड नहीं हुए, कि दिस इज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर और हिम, okay, in a particular manner, properly. थर्ड है कि अगर सामने वाले के कैपेसिटी के ऊपर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या सर्टन उसका भी कुछ पोटेंशियल हो सकता है या लिमिटेशंस हो सकते हैं,
तो वो Correct. आपके लिए एक बोलते हैं ना, वो गलत आपके लिए हो जाएगा. लाइक यू रियली नीड टू रेक्टिफाई कि इफ यू रियली वांट Yeah. टू गिव दैट वर्क टू, लाइक बोलते हैं ना, घोड़े का काम घोड़े को, गाय का काम गाय को, राइट? यू कैन आस्क अ Correct. फिश टू क्लाइंब अ ट्री, राइट? Correct. तो वो फिर Yeah. आप में वो एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कि मैंने ये किसी को जो काम बोला था वो उसके बोलते हैं ना पोटेंशियल के हिसाब से है क्या. Correct. अगर इतना कर लोगे ना, विल यू बी गेटिंग सॉर्टेड अबाउट इट? Yeah. बिकॉज यू विल बी क्लियर कि यार ये गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं. इवन मैं बता रहा हूँ, गुस्सा खुद के ऊपर भी नहीं करना चाहिए और अदर नहीं होगा, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये हुआ. व्हेन यू थिंक अबाउट दो स्टोरीज ना, मैंने क्या किया है वगैरह, ओके, सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं, वो गैप थे, मैंने ही नहीं किया. जस्ट बी देयर. अगर जैसे ही मालूम पड़ा ना मेरी वजह से भी हुआ है, खुद की वजह से भी हुआ है ना, ओके, don't be harsh on yourself, don't start sabotaging yourself, don't start bashing yourself. समझ में आ रहा है? Don't get Yeah. angry on yourself also. थोड़ा acknowledge करो उसको, हाँ रह गया है, then rectify करने के लिए जो करना है ना उसके ऊपर focus करो, rather just reacting on that situation. Respond. समझ में आ रहा है ना? Reaction will always take you away from your outcome. Respond will take you towards your outcome. क्लियर हो? Correct. Yeah. तो आपके जो इमोशंस हैं, सिर्फ एंगर के ऊपर ये मैंने बताया है, दूसरे जो अनप्रोडक्टिव इमोशंस जो आते हैं ना, कुछ कुछ चीजें जो मंकी चटर जो चलता रहता है, ओके, सो एट Monkey दैट टाइम mind. आल्सो व्हाट हैपेंस ना, आपका वो मंकी जो है ना, वो आपको याद दिलाता है जो आपने कभी कभी अपने आप को जो टैगिंग किया हुआ है ना, कभी कुछ काम में फेल हो गए, ये हासिल नहीं कर पाए, ओके. तो अभी आप पूरा का पूरा जब से आप इम्प्रोएक्स के साथ जुड़े हुए हो, यू हैव बिकम अ पॉलिश्ड पर्सन, योर अवेयरनेस इज सर्टन एट सर्टन लेवल नाउ, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर लाइक, अभी हो गया है कि वो दो धारी तलवार है, अभी मालूम पड़ गया है बाबा ये किसकी वजह से होता है, तो वो मेरी वजह से ही हो रहा है, ओके. तो उसमें तो लाजमी है कि भैया खुद के ऊपर तो ज्यादा गुस्सा आएगा, पर यहाँ पर याद रखना कि करेक्शन करना आपके हाथ में है और वो चॉइस है, फर्स्ट. दूसरा, गुस्सा करना भी है, वो भी एक चॉइस है, क्योंकि क्या मालूम है, गुस्सा आप उन लोगों के ऊपर कर सकते हो या तो वो आपके सबऑर्डिनेट है या आपके जो बोलते हैं ना, आप जिस ओहदे पे हो या जिस भी लेवल पे हो उससे कम में है, आपके जैसे सीनियर वाले जो हो जाते हैं या ऐसी कुछ अथॉरिटी लेवल पे है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एंग्री ऑन देम या शाउट ऑन देम. होगा क्या? वो टाइम पे बराबर सोचेगा ना दिमाग, वो टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करोगे. So why can't it happen with your parents, with your friends, with your siblings, with your whatever society you are living in your office colleagues? कर सकते हो ये. Yeah. Emotions control करना है, that means emotion is energy in motion, okay? Motion is subjective, energy है ना, energy is energy. वो motion में इस प्रकार से डालो, it should be in a like alignment to progressive nature. आपको प्रोग्रेस, आपके आउटकम की तरफ लेके जा रहा है, वहां पर एनर्जी डालो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टेगनेंट और उसी के ऊपर बैठ के रोना धोना करना है तो टाइम निकल जाएगा. तो वो इमोशंस के लिए ना दो डिस्टिंक्शंस जो अभी मैंने आपके साथ में बात की है, उसके ऊपर आप ध्यान दो, यू विल बी थ्रू. आर यू क्लियर ऑन दिस? Yeah. 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 Yeah.